السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص مہمان لے کے آئے ہیں، معروف ترک اداکار اینگن الطان جی۔ آپ کی مہربانی ہے، اینگن الطان چھوڑیں، یہ ارطغرل کہے۔ یہاں جتنا ارطغرل مشہور ہے نا، وہ تو خود اتنا الطغرل نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا ملتانی سون البانی مشہور۔ آپ کی مہربانی ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اچھا، آپ تشریف تو رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ ہمارے شو میں رونق افروز ہوئے ہیں جی۔ بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی۔ مجھے تو جنید بھائی خود نہیں یقین آ رہا کہ پاکستان میں اتنا مشہور ہو چکا۔ معافی کے ساتھ آپ ترک زبان نہیں بولتے؟ بھائی جتنا میں پاکستان میں پھیلا ہوا ہوں، مجھے اب ٹرکش بھول گئی ہے۔ اب تو میں یقین مانیے بلوچی بھی بول لیتا ہوں، سندھی بھی بول لیتا ہوں، پنجابی بھی بول لیتا ہوں، اور پشتو تو ہماری ویسے ہی قریب پڑتی ہے۔ یہاں تو آپ واقعی بہت مشہور ہیں۔ جنید بھائی، جب یہ ارطغرل کی بس چلی تھی تو 5-6 سواریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی ہم نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا ہے، بس کی چھت بھی بھر گئی ہے۔ حیران ہوں میں کہ اتنا پاپولر میں جب یہاں آیا چھپ چھپا کے آپ کے شو میں حصہ لینے کے لیے، تو میں تو دنگ رہ گیا۔ ہر طرف ارطغرل لکھا ہوا تھا، ارطغرل شاہی چنے، ارطغرل کلاتھ ہاؤس، ارطغرل باربیکیو، ارطغرل بنڈا۔ ایک ریسٹورنٹ والے نے تو حد کر دی، اس نے لکھا ہوا تھا ارطغرل نان چنے، خاص حلیمہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے۔ میں تو حلیمہ سے لڑنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے بھی چکر لگا چکی ہو۔ سر جی 2 پلیٹوں کے ساتھ 1 پلیٹ فری دیتے ہیں۔ آپ 3 پلیٹیں فری لیں بھائی جان، ہمیں پتہ ہے آپ کماتے کم ہیں اور کھاتے زیادہ ہیں۔ مسٹر اینگن الطان، آپ کا پاکستانی مسٹر الطرل، آپ کا پاکستان کی قوم پر ایک اور احسان یہ ہے کہ جب ہم کرونا کے خلاف نبرد آزما تھے جی، تو میرا خیال ہے ہم میں سے جو 80% پاکستانی عوام ہے، انہوں نے جو آئسولیشن کا پیریڈ گزارا ہے اپنے گھروں میں، وہ الطرل دیکھ کے گزارا۔ آپ یقین جانیے جنید صاحب، ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہتا ہے میرے بیٹے نے میٹرک میں اتنے نمبر نہیں لیے جتنی تمہاری قسطیں دیکھ لی ہیں۔ نمبر اس کے 244 تھے، قسطیں اس نے 248 دیکھ لی۔ اے بہادر انسان، بولے بھائی معاف کر دو، میں نے ویسے کیا، میں نے آپ کے نا سارے ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے آپ کا نام نہیں آتا، میں تلوار والا بھائی کہنا تھا۔ میرا نام اب ارطغرل ہی ہے، اور میں نے بھی آپ کے بہت سے ڈرامے دیکھے۔ اچھا جی، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، میں نے وہ ڈرامہ بھی دیکھا ہے جس میں آپ انہی بھی کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی ارطغرل صاحب۔ اب بوٹ تو ساڑھے شباز شریف صاحب نے پائے ہیں۔ آپ کا شباز شریف صرف سون پادروں میں پہنتا ہے، میری ساری زندگی ان بوٹوں میں ہی گزری ہے۔ ارطغرل جی، یہ تلوار ਇਹਦੇ ਹਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੋਲ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ارطغرل، کسی ناحق کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین نہیں کرنا۔ شکریہ بہنا۔ جنید صاحب، یہ فنکار ہمیں مستعار دے دیجئے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندو بنیے کا پارٹ بہت اچھا کرے۔ اتنا بزدل، ایک اجنبی خاتون کو فوراً ہی بہنا، کیا کہنا؟ ਪਾਲਤਾਨ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਚਕਾ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨਾ ਕਰਨਾ। ساتھ تمہیں میرا لے جائے، قلعے کا دروازہ بند کر کے کنڈی میں تمہیں ہی دے دیا کرے۔ مسٹر اینگن الطان، وہی تلوار اس کے لیے اور وہی تلوار اس کے لیے بیچارے کے۔ اور کیا اس کے لیے علیحدہ نیل کٹر رکھو؟ کیا بات ہے ارطغرل جی، آپ کا سیریل دیکھ کے ہر فرد میں جذبہ ایمانی جاگ چکا ہے، ہر بچہ ارطغرل غازی بننا چاہتا ہے۔ تو کیوں نہیں بنا رہے؟ 10 لاکھ روپے ملتا ہے ایک قسط کا۔ میں تو 12 لاکھ لیتی ہوں۔ او کیا بات ہے۔ واہ جی واہ، ہوں تے ماشاءاللہ تسی دوویں ڈیفینس رہندے ہو گے۔ تو پہلے تمہیں کس نے کہا میں پکی ٹھڈی رہتا ہوں؟ جی جتھے مرضی رہو لیکن میرے کو دور رہو۔ جنید بھائی، آپ بھائی ہیں ہمارے، میں پاکستان صرف پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جتنی محبت آپ لوگوں نے دی ہے، اتنی اگر آپ اپنے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے بڑی ترقی کریں۔ آپ کو
आपको अपना समझते हैं तो आपसे इतना प्यार करते हैं। नहीं, मैं आपके एक्टरों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सुना बेचारों ने कोरोना के दिनों में 5 सिगरेटों के खोखे लगा लिए। कई बेचारे बेकरी खोल के बैठे। कई पाकिस्तानी एक्टर बेचारे तो मास्क बेचते हुए भी नजर आए। कौमें जुनैद भाई उसी वक्त तरक्की करती हैं जब अपने हीरो से भी प्यार करें। अधूरे वाला, इस कौम ने आपको इतनी मोहब्बत इसलिए दी है कि वो आपको अपना हीरो समझती है। तो सारी तरक्की मेरे से ही पाई जाती हो। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी कौम को सारी उम्मीदें मुझसे ही हैं। जिस घर में जाएं आगे सबसे ज्यादा इज्जत अर्तुगरुल की हो रही है। इसलिए कि अर्तुगरुल में जो वैल्यूज दिखाई गई हैं, माशरती दीनी वैल्यूज दिखाई गई हैं, वो हमारी अपनी वैल्यूज है। जुनैद भाई, मेरा ख्याल है कि ड्रामों में दिखाई जाने वाली वैल्यूज से ज्यादा अगर अपनी अमलन वैल्यूज से मोहब्बत की जाए तो तरक्की फिर होती है। मैं माफी चाहता हूँ। मैं कहा जुल्फी तबीयत दे मस्कीन ही हूँ, तलवार भी फड़ी है, फिर घड़ी घड़ी कही जा रहे, माफी चाहता हूँ। अर्तुगरुल जी घोड़ा भी ले आए हो कि मेट्रो बस से फिर जा रहे थे? घोड़े भी आया था और बाहर आपके सिक्योरिटी वालों ने कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए घोड़े के माथे से गन रख के टेम्परेचर चेक किया। कहते हैं जी घोड़ा गर्म है, ये अंदर नहीं जा सकता। और मैंने कहा इस्तांबुल से दौड़ के आया, इसलिए गर्म ही होना है। हाँ, इचरे से मजाक गाड़ी लेके जाए वो गर्म हो जाती है, ये तो फिर घोड़ा है। आपको इचरे और मजाक क्या कैसे पता है? जुनैद साहब, मैंने स्ट्रगल ही बड़ी की हुई है। अच्छा। और वैसे भी अब तो पाकिस्तान के हर टीवी में आ रहा हूँ। किस गली में किस मोहल्ले में मैं नहीं आ रहा, हर रास्ते का मुझे पता चल गया। इट्स माय सेकंड होम नाउ। मैं तो ये शिमला पहाड़ी के पास जो जहाज बैठे हुए हैं उनके साथ 10-15 मिनट बातें भी करके आया। अर्तुगरुल जी, जे तलवार दी तार चेक करनी हो ना तो बंदा साढ़े को फालतू है। और अगर खुंडी करनी हो तो फिर तुम्हें चेक करूं। ये तलवार हमने समंदरों में, जंगलों में, मैदानों में चलाई है। हम सब जानते हैं कि इसके कहां पे क्या फायदे हैं, इसलिए हमें मत बताओ कि इसे कहां तेज करना। अर्तुगरुल जी थोड़ा पीछे हो जाओ, तुझे जो टीवी की तलवार कर दो, मैं सोफे ते हो ना छाल मार के। नवा टीवी क्यों नहीं लेंदे? पुराने टीवी ते जिन्नियां लहरां आंदियां ने, चंगा भला हीरो भी ड्रैकुला बन जाता है। अच्छा अर्तुगरुल साहब, आपने हलीमा सुल्ताना साहिबा से पसंद की शादी की थी। जी, ये हमारी जाने जा। अच्छा खुशरा, मैं ये चाहता हूँ कि शादी को इतने बरस गुजर गए, 3 बेटे अल्लाह ताला ने आपको इनके वतन से अता किए, तो आज भी आप इनसे डरते? इसका मतलब है वो जो अजीजी यहाँ बैठ के बातें करता है वो ठीक करता है। आप देखें कि सदियों पुरानी तारीख में सैकड़ों सवाल पड़े हुए हैं, मगर मौसूफ को सिर्फ एक ही सवाल दे दिया है। बेटा, एक मेरी गल याद रखी। जी जी। अर्तुगरुल होवे भावें अजब गुल, विआह भावें आप कीता होवे, भावें मां प्यो ने कराया होवे, ओ बुढ़ी कोलों सारे डरदे नहीं। हाँ, तो हमारे ही निकले। वो तुर्की का मुहावरा नहीं सुने, ऊंचा चढ़ के वेखिया ते घर घर बलदी आग दे। अच्छा, आप तशरीफ तो रखे ना? तशरीफ रखिए। अच्छा एंजन अल्तान साहब, आपको एक हकीकत बताऊं, आपको पता होगा अच्छी तरह कि आप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपको नहीं पता कि आप कितने पॉपुलर हैं पाकिस्तान। जुनैद भाई, मुझे तो पाकिस्तानियों की मोहब्बत का उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मेरे साथ राब्ता किया। अच्छा। उसने मुझे बताया कि जितने तुम इधर मशहूर हो, तुमसे एक फिल्म करवानी है हमने। मैंने कहा कौन सी फिल्म? कहने लगा अर्तुगरुल दा खड़ाक। तो ये अर्तुगरुल का खड़ाक आपसे क्यों करवाना चाहता है? वो कोई स्टोरी में कोई टर्किश टच है? जी जुनैद साहब, ये मैंने उससे पूछा कि तुम ये मुझसे चाहते? कहने लगा जी कि एक सीन के अंदर हीरो तुर्की दुम्बे की सब्जी खा रहा है। लेकिन सब्जी खाते हुए कैसे पता चलेगा कि ये तुर्की दुम्बे की है? तो कहते नहीं कोलो दी चक्की पई होगी। मुझे भी एक फिल्म की ऑफर हुई है, मिस इस्तांबुल। जी हाँ, फिल्म का नाम है मिस इस्तांबुल। इसने कहा मुझे क्यों कास्ट करना चाहते हैं, कोई जंगजू स्टोरी है? कहते नहीं जी, गाना जंगजू है। एक गाना है आपके ऊपर, तेनू प्यार करांगी पस्तौल वहा के। वैसे मैं तो आपसे कहती हूँ, जितना पाकिस्तान में लोग आपको चाहते हैं ना, आप पाकिस्तान ही शिफ्ट हो जाएं। बेटे पैन मेरिए,
होने लगे थे शिफ्ट। अच्छा। वो तो बातें सुन सुन के डर गया हूं मैं। वो क्या हुआ? दोस्त एक ने बताया कि क्यों इधर आके टेंशन में जिंदगी उतारनी है, यहाँ सुबह सुबह उठोगे टेंशन शुरू हो जाएगी। भाभी कहेगी जाओ दही लेके आओ, सारे रास्ते यही सोचते जाओगे दही खट्टा होएगा या मीठा। 3-4 वाली दही खट्टा निकलेगा, फिर कोई दोस्त कहेगा भाई जी वर्दी पा के जाओ फिर मीठा देंगे। पाकिस्तान से सिर्फ जो इज्जत होती है सिर्फ वर्दी दी होती है। हलीमा को कई लड़कियों ने समझाया इधर ना ना बड़ी डाढ़ी जिंदगी है, सुबह सुबह स्कूल जाते हुए बच्चे जितना ऊंचा रोते हैं तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे। तैयार शुरू करके खामद को दफ्तर भेजोगी, बच्चों को स्कूल भेजोगी, अभी सुख का साह नहीं आना तो कोई बंदा तेन बासी मच्छी दे जाएगा। सारा दिन यही टेंशन लगी रहेगी, पैसे पूरे ले गया मच्छी बासी दे गया। बहुत समझाया लोगों ने भाई जी ईदों एक दिन पहले बकरा चोरी होता जी। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुझे किसी ने ये ताना दिया है कि मैं बीवी के नीचे लग गया हूँ, तो जब वो निकलने की कोशिश करता है ना तो मामला खराब होना शुरू हो जाए। भाईजान अभी 2-3 दिन पहले एक समाजी तंजीम की रिपोर्ट नजर से गुजरी है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कि वतन अजीज में पिछले 5 वर्षों के दौरान 9% शादियां ऐसी हुई हैं जो शादी के पहले साल के अंदर अंदर ही अपने इख्तिताम को पहुंच गई, यानी तलाक पर मुंतज हो गई। 9% शादियां पहले 1 साल के दौरान, और ये पिछले 5 साल की रिपोर्ट है। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह है तलाक या अलहदगी की, हाँ जी, वो है एक दूसरे पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश, वो बीवी की तरफ से हो या शौहर की तरफ से हो। हाँ जी हाँ जी, ये तो फिर किसी जगह भी आप चले जाएं तो जो मैं है वो तो बंदे को फिर ज़िबा करवा देती, मार देती है। हाँ। यानी ये तसल्लुत कायम करने का जो एक मशवरा होता था घर वालों की तरफ से भी, बच्ची के माँ बाप की तरफ से होता था, वो होता था कि मोहब्बत के जरिए तसल्लुत कायम करना। सही, उनके दिल जीतने हैं तुमने, किसी और मनफी अंदाज में तुमने शौहर पे काठी नहीं डाल लेनी। और आमतौर पे हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल आम रिवाज है ना कि शादी के फौरन बाद ये ताने मिलना शुरू हो जाते हैं मर्द को, बीवी दे थले लग गए और बीवी दे थले लग गए। अब एक बात ये है कि एक मजाक है, और जब ये मजाक जो है संजीदगी के दायरे में दाखिल होने लगता है तो इसके बड़े खतरनाक किस्म के मुज़मरात होते हैं। जब शौहर के दिल में ये बात कहीं ना कहीं से बैठ जाए कि मुझे किसी ने ये ताना दिया है कि मैं बीवी के नीचे लग गया हूँ, तो जब वो निकलने की कोशिश करता है ना तो मामला खराब होना शुरू हो जाता है। नहीं, हमने तो कई दफा ये वजाहत भी की है कि हम जो आपस में नोक झोंक करते हैं बीवी से डरने डरने की, ये वो हम अपनी बहनों बेटियों को, हमारी माओ को, जो खवातीन हमारी घर में बैठी हुई हैं, ऐसे उनके एक जरा दिल खुश करने के लिए या कह लो कि उनकी हौसला अफजाई के लिए। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये ना ही को किसी के थले लगा होता है, ना ये सारी चीजें बकवास है। सीरियसली से कहें तो ये बकवास है। आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें कोई आपकी हद तक नहीं है कि आप बीवी का एहतराम कर रहे हैं, ये तो हुक्म नबी है। आप अपनी बेगम का एहतराम करें, उसकी इज्जत जो है वो घर में होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई लोग जब ये एतराज करते हैं कि जनाब ये मियाँ बीवी के लतीफे, और ये पूरी दुनिया में मियाँ बीवी के यानी वाइफ हस्बैंड जोक्स जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी के हवाले से नंबर 1 है। अरे वाह, बट इट डजंट मीन एट ऑल, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता बीवी की या शौहर की तज़हीक मकसूद है या उस रिश्ते के तकद्दुस को कम करना मकसूद है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें ज़ाहिर है हंसी मजाक का पहलू बहुत ज्यादा होता है, इसमें ज़ाहिर है कि लाफ्टर बहुत ज्यादा होता है, इसमें कॉमेडी होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा मजे, मतलब एक दूसरे को मजाक होता है, खानदानों का मजाक होता है, लेकिन उसमें जो बुनियादी तौर पे जो बाहमी एहतराम है वो हमेशा मलूज़ खातर रहना चाहिए। यार मैंने कई ऐसे प्यारे मर्द देखे हैं कि वो अपनी बीवी को इस कदर सबके दरमियान एहतराम से बुला रहे होते हैं, वो बाकायदा अपनी बेगम के नाम के साथ जी कह रहे होते हैं, जी इस तरह नाम के साथ जी कह रहे हैं। मैं जाती तौर पे बाखुदा बड़ा एहतराम करता हूँ ऐसे मर्द,
میں یہ اپنا یہ ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال خوبصورت حدیث ہے کہ بہترین آدمی ہے وہ، اگر کسی کی آپ نے کردار کی اچھائی دیکھنی ہے تو دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا لونگ ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ واقعی حقیقت ہے. جی ہاں عزیزی، میں نے ایک شادی میں دیکھا لڑکوں میں کھڑے ہوئے ایک بندہ اپنے بچے کو کہتا بلائے اندروں ماں نو، جب اس کی بیوی باہر آئی ہے تو سائڈ پہ وہ کہتا ہے دسو پھر کنی سلامی پانی یہ جوڑے. This is the problem. یہ بنیادی طور پہ یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میرا اپنی بیوی پہ بڑا روب ہے. کیا کمال کی بات ہے، تم کیا ترم خان ہو اتنے، اور جہالت کو پتہ، جہالت ہے اور کیا. اس سے کوئی عزت بھی نہیں بڑھتی بھائی، عزت تو تمہاری اس وجہ سے ہے کہ تم ایک سینئر صحافی اور اینکر. آئی ایم سوری، یہ سیریس آج بات ہے، سیریس بات ہے اور ہم اس کی آج مخالفت کر ویری سیریس نوٹ. جو بھی ہے مذاق اپنی جگہ، سنجیدگی کی تقاضا یہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سنجیدگی کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ باہمی احترام ملوز خاطر رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب دوسرے لوگ سن رہے ہیں. مطلب اگر آپ کی بیوی کے عزیز و اقارب موجود ہیں تو پھر آپ کو بیوی کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے، اس کا مان بڑھتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھنا تم کہ 99.9% جاہل آدمی، ان پڑھ بندہ جو ہے نا جی، وہ اس طرح کی حرکتیں لوگوں کی موجودگی میں، وہ زیادہ لوگوں کی موجودگی میں ہمیں اونچی آواز میں بولتا ہے، بیوی سے بدتمیزی سے بولتا ہے. بھائی ہاں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا اس میں اب تو تمہیں ارد گرد سے ہی، چلو کتابوں میں سے نہیں تمہیں عقل آئی، عقل حاصل کر لو کہ محترم لوگ جو ہوتے ہیں، جو بڑے پیار والے کردار والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی حیثیت والے لوگ، وہ اپنی بیگمات کو ساتھ لے کے اس کو بھی اپنے سے زیادہ عزت دے کے. عزیزی ویسے میں نہیں ڈراتا، میری بیوی خود ہی ڈرتی ہے مجھ سے. یار تمہاری بیوی کو تم سے ڈرنا چاہیے، اصولی تو یہ فطری بات ہے، تم سے نہیں ڈرنا اور کس سے. عزیزی یار وہ بہن ہماری بڑی اچھی خاتون ہے، اس لیے وہ اس سے ڈرتی ہے. کمزور دل بھی ہے نا، اس لیے ڈرتی ہوں. یار نہیں ڈرتی، یار نہیں ڈرتی. اچھا میں ایک جو اس میں کہ جی اتنی جلدی طلاق پر بات کیسے پہنچ جاتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے ہمارا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ماں باپ جو ہے دونوں طرف سے یہ سمجھا بجھا کے بھیجا کرتے تھے کہ معاملے کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنا. اب معاملات جو ہے نا وہ بڑا ڈرتے ڈرتے میں کہتا ہوں سو کالڈ فیمنزم اور ہمارے میڈیا نے معاملات یہاں تک بڑھا دیے ہوئے ہیں کہ سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، اگر وہ ایک سنا تم نے دو سنا لیا اور واپس آ جانا. تاکہ لیے یہ بچوں کو سبق مت پڑھائیں، اللہ کا واسطہ مت پڑھائیں. ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے اسی رپورٹ میں، ایک جگہ یہ بھی ایک وجہ لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ پسند کی شادی آ جاتی ہے نا، وہاں پہ اب پسند کی شادی میں جو جوڑے کا قصور ہے اس کو تو ایک سائڈ پہ رہنے دو. پسند کی شادی میں جب ماں باپ قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے دل میں ایک کینہ رکھتے ہیں، بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے تو اپنی مرضی کی ہوئی ہے، تم نے اپنی مرضی کیا، بھگتو اب بھگتو. وہ معاملے کو زیادہ خراب کر دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے. تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے. یہ بھی ماں باپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی حکم ربی اور حکم نبی ہے. پسند کی شادی آپ کو پسند ہے تو شادی کریں. اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بڑے فرینک ہو کے اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں جو معیوب ہوتی ہے یا اچھی نہیں لگتی، یا چلو کہہ لو کہ آپ کی ایک ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. اگر بیوی کی طرف سے اس طرح کی گفتگو ہو پھر آپ اس فوراً خامد بن جاتے ہیں. زلفی اپنا ہماری جو بہو ہے نورانی ہماری، یہ تو روک پا نہیں سکتا، خود جگتے کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے ایک کر ہی ہمیں کیا کہ زلفی جی تھوڑا بڑا تلے چڑیر کا غصہ کر گیا. اچھا چڑا گیا پہ غصہ نہیں کیا، تلنے پہ غصہ کیا. انہوں کہتے تیری جگت تو مینوں ہاسا نہیں آیا، میرا پنڈا سڑیا ہے. اور تلنے پہ بھی اس لیے غصہ کیا کہ تیل کیوں ضائع کیا، تمہارے تلنے پہ تیل لگا کتنا، 1.5 قطرہ نہ خشک جگت کر لینی، تلی کیوں کی تھی. ویسے یہ کیا تو میں نے مذاق کے انداز میں بات ہے، مگر یہ میں سیریس بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت بیوی بھی اگر کسی لاڈ میں یا پیار میں یا مان میں
आपको कोई इस तरह की बात करती है तो यार खुदा के वास्ते डाइजेस्ट करो। हाँ, बर्दाश्त। आप सब में बीवी को झाड़ दो, हाँ। अगर वो झाड़े तो आप समझते हो कि मेरी अब अना का मसला बन गया है। ये बकवास है, ये बड़े सॉफ्ट अगर मैंने अपनी जिंदगी में कई अपने दोस्त देखे, सारी जिंदगी गुजर गई है, डोई पड़ी है, जूता पड़ा है, कोई भी चीज पड़ी है, वो सारी जिंदगी कहते रहे हैं कि नहीं नहीं लाड से किया, प्यार से किया, लाड से मारा, लाड से मारा। हाँ जी, बल्कि कई बेचारे थे में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ है। ये मेरा साला बैंक में चौकीदार है जी। अच्छा। हाँ जी, तो वो राती उसकी तबीयत खराब थी तो वो कह रहा था मैं आपके घर आके सो जाता हूँ, तो वो फिर एहतियातन बैंक के पैसे भी साथ ही ले आया। लेकिन गुज़िश्ता रोज आपने खबरों में सुना कि नैब लाहौर ने कार्रवाई करते हुए महकमा एक्साइज के एक अफसर को गिरफ्तार किया और उससे 33 करोड़ के लगभग रकम बरामद की। आज वही मुल्जिम यानी ख्वाजा वसीम हमारे सामने बैठा है, आइए बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब, राजा साहब क्या रहे हो? जुनेद साहब, बस ये माहौल अब ऐसा बना हुआ है कि बंदा को वजाहत भी पेश करते हुए डर लगता है कि सुनता ही कोई नहीं। क्या सुने तुम्हारी? जुनैद साहब, ये जिन्होंने छापा मारा है इनको मिन्नतें कर करके बताया यार 25,000 रुपया मेरी साली का है, वो मेरे घर में रख गई हुई है। ख्वाजा साहब 33 करोड़ निकला है, 33 करोड़। हाँ जी, तो 2 लाख की मैंने कमेटी डाली हुई थी। 33 करोड़ निकला है। ये 33 है ही मेरे लिए मनूस। जुनैद साहब, हुआ पता है क्या है, वो ना मेरा साला बैंक में चौकीदार है जी। अच्छा। हाँ जी, तो वो राती उसकी तबीयत खराब थी तो वो कह रहा था मैं आपके घर आके सो जाता हूँ, तो वो फिर एहतियातन बैंक के पैसे भी साथ ही ले आया। उसने कहा पायन मैं वो पैसे उधर छोड़ के तो आपके घर आ जाऊंगा तो पीछे से डकैती ना हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आओ, बस वो बैंक का बोर्ड जो था ना वो उतार के लाना भूल गया। वो अगर मेरे घर के ऊपर लग जाता बैंक का बोर्ड तो झगड़ा नहीं था पड़ता। तुमने अपने साले से कहना था ना कि ऐसे डाकू के पास ही ले आओ रकम। नहीं जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से कभी भी इस तरह का काम नहीं किया। बस वो हाँ हुआ ये है कि वो जुनैद साहब मैं रिटायर हो गया वो। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि कोई काम करूं अच्छा सा। तो मैंने ना जी फिर ईद मुबारक वाले नोट बेचने का सोचा। अच्छा। मैंने कहा गली में बच्चों के खिलौने वगैरह साथ ईद मुबारक वाले नोट में रखवा लूंगा। अच्छा। तो ये नोट उस सिलसिले में छपवाए थे, अभी ईद मुबारक वाला ठप्पा लगना था जी। 22 करोड़ रुपए से ज्यादा ये शख्स अपने असासे जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका है और गालिबन 20-22 करोड़ इसकी बीवी के नाम पे है। जुनैद साहब, आप भी उनके साथ मिले हुए हैं, फिर मैं चला जाता हूँ जी। बैठो बैठो। जान नहीं सकते ख्वाजा यार साहब। ये जो बीवी मेरी के नाम पे नोट निकाल रहे हैं, आप भी जानते हैं औरतों को आदत होती है कमेटी डालने की। ओ भाई कमेटी, आपकी बीवी के अकाउंट से 19 करोड़ रुपया निकला है। हाँ, तो उसकी सहेलियां भी तो 1900 हैं। 30 सहेली लाख रुपया पड़ता है। सीधी बात है ख्वाजा साहब, 33 करोड़ तुमसे बरामद हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ। और गलती ਨਾਲ ਖਾ ਲੇ तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਹਰੀ ਤੇ ਧੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। 33 करोड़ रुपया एक मामूली एक्साइज अफसर के घर से बरामद हुआ और फिर भी देखो किस कदर ढिठाई से बात कर रहा हूँ। जुनैद साहब, असल में छापा इन्होंने मारा है सवेरे सवेरे। इनको चाहिए था घंटा डेढ़ लेट आते, मैंने अभी बीच में से सब्जी गोश्त लाना था। तो सब्जी गोश्त ले आता बीच में से तो फिर 33 करोड़ पूरा नहीं था ना उन्हें, कम से कम 2000 बीच में से निकल जाना था। यार तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम अपने बच्चों को अपने हाथों से रिज़्क़े हराम खिलाते रहे हो आज तक? नहीं जुनैद साहब, मैं तो रात को बड़ा लेट आता हूँ, मैं नहीं अपने हाथों से खिलाता, बल्कि आपकी परजाई भी नहीं खिलाती, अब तो वो बड़े हो गए। तो
खाते तो तुम्हारा ही रिस्क हराम है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जितना भी खाता है, ज्यादा खाता है, खाता तो हलाल है ना। जुनैद साहब ना हलाल नहीं हो सकता। खबरदार मेरे किसी साथी के बारे में मजाक में भी ऐसी बात कही तो सॉरी जी। सॉरी। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें डर नहीं लग रहा यार? क्या मतलब यार, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आहो जी, मगर करोड़ों च भी ते आ चुके हैं ना। तो करोड़ों में आ गया तो पकड़े तो गए हो ना, आपको अदालत से तुम्हें सजा सुना देगी। जुनैद साहब जब करोड़ों पकड़े जाए ना तो करोड़ वाला वकील कर ले तो बाहर आ जाए। ये देखे, ये जोम है, ये खुशगुमानी है। लो जी भाई उन सबक मोज तकरीर कर लगे। ये खुशगुमानी इन लोगों को जुर्म पे उकसाती है। ਉਹ जुनैद साहब ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। ओ भाईजान, नोटों पे इतना गुमान ना करो। कुछ अफसर मेरी तरह ईमानदार और सख्त भी होते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਂ ਗਿਣਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। और जो भी है उनको दिली इत्मीनान तो हासिल होता है ना, अल्लाह के हुजूर तो सुरखरू होंगे ना। जुनैद साहब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुल्क में से रिश्वत खत्म करना चाहते हैं तो खुदा का वास्ता है तनख्वाहें बढ़ाएं। यार ये क्या तुम्हारा घिसा पिटा जवाब है? तनख्वाहें बढ़ाएं हमारी, तुम्हारी 50-60 हजार तनख्वाह होगी। फर्ज कर लिया कि अगर तुम्हारी 1 लाख रुपया तनख्वाह होती तो फिर तुम ये सब कुछ ना करते। ओ भाई, ये तुमने सब कुछ किया है ना, ये तुम्हारी जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारी हवस की इंतहा थी। 33 करोड़ तक ले गई है जो तुम्हें। एडा लम्मा हूं करन दी की जरूरत सी जी? रकम थोड़ी लंबी है, 33 करोड़। शर्जील साइकिल वाले की नजर लग गई है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सारे पाकिस्तान की माएं बहनें जो हैं वो कल से इंतहाई दुखी हैं। जी बिल्कुल, बहुत दुख है। यार ये क्या हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? मोटरवे के ऊपर ये वाकया हो गया। अच्छा जी, ये जो आईजी का और सीसीपीओ का मामला चला था, इस पे गुफ्तगू इसलिए नहीं सीरियसली की ज्यादा कि चलो ये होता आ रहा है। ये भी वैसे फजूल बात है कि ये पहली दफा हुआ, कई दफा ऐसा हुआ है। पुलिस में ग्रुप बंदियां भी हो गई हैं, वो आईजी का जाना आना, ये वो मेरे पूछे बगैर क्यों लगा दिया, ये सारी गलत बातें हैं, ये शुरू से होता आ रहा है। कई दफा आईजी के पूछे बगैर सीसीपीओ लगाया गया है, बल्कि लगता ही इस तरह है। बहुत घट होता है ऐसा कि आईजी भी कहे कि भाई जी मेरा बंदा ला लो। मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान होते हैं, जो अपना गवर्नेंस का रिजल्ट होता है उसका असर उन पे पड़ता है इलेक्शनों के दिनों में। इसलिए उनका यह हक बनता है कि अपनी टीम बना के काम करें जी, अपने पसंदीदा ऑफिसर्स लाएं जो वो समझते हैं कि ये हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ मिलके अच्छा चल सकते हैं। टीम बनाने में कोई हर्ज नहीं। सारी दुनिया में, अमेरिका में, हर जगह ऐसा ही होता है। जब नई हुकूमत आती है तो वो नए अपने ऑफिसर्स लगाती है। मगर ये जो सीसीपीओ साहब लगे हैं आके, जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने लगवाया है इन्हें। इन्होंने कल जो मोटरवे के वाकये के ऊपर जो बयानात दिए हैं ना, उस पे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ है। और मैं माफी के साथ अर्ज करूं कि मुझे सीसीपीओ बेचारा काटते बड़ा मस्कीन आदमी लगा है। ये को बड़ा मस्कीन बंदा होता है जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं ना होता जिस अफसर में। जैसे होता है ना कि बंदे की बस ना चल रहा हो तो बंदा अपने बच्चे ने कुटन लग पैंदा, तो क्यों बाहर क्यों निकले ऐसे? कितनी मासूम और कितनी बेवकूफों वाली बात है कि इस खतून को क्या जरूरत थी मोटरवे की तरफ से जाने की, ये जीटी रोड की तरफ से चली जाती। तो भाई जी आप मेल मिला के वजीर आजम से कह के मोटरवे बंद करवा दें, या मोटरवे के बाद बोर्ड लगवा दें कि इतने बजे के बाद मोटरवे पे चढ़ना मना है। आपने अगर मोटरवे खोली हुई है तो सबसे सेफ तरीन जो
पूरी दुनिया में रास्ता समझा जाता है वो मोटरवे होती है। हाँ जी। उसके इर्द गिर्द बकायदा जाल लगा होता है, उसके अंदर कोई कुत्ता बिल्ला नहीं आ सकता। हाँ जी। ये जो 2 कुत्ते बिल्ले आके तो उन्होंने खातून के साथ इस तरह की हरकत की है जानवरों वाली, जी ये ऐसे वाकयात मोटरवेयों पे नहीं होते हैं। हाँ जी, तो आप बिल्कुल। अपनी मोटरवे को पहले आबाद तो करें। हाँ। पहले आप बैठ के तो ये करें तो सही फैसला कि 6 महीने हो गए हैं वो खोली हुई है मोटरवे, तो उसके ऊपर पुलिस क्यों नहीं है, उसके ऊपर वो सर्विस वगैरह क्यों नहीं है, हाँ। उसके ऊपर गाड़ी खराब होने की वजह से जो गाड़ी आ जाती है फौरन मैकेनिक की, हाँ जी, वो क्यों वो नहीं नहीं है, ये दूसरी मोटरवे पे है। तो यही हाल ये मुल्तान वाली मोटरवे का है जी। तो आपको अगर एक वाकया हो गया है आपकी बहुत सारी गलतियों की वजह से, ये गलतियां जी। हैं, अगर पुलिस उधर हो और पुलिस भी मोटरवे, हम तो शो में तारीफें कर करके थक गए हैं मोटरवे पुलिस की, तो मोटरवे पुलिस की अब कारकर्दगी ये है कि आज एक और डाका पड़ गया है, डकैती हो गई है मोटरवे के ऊपर कहीं शेखपुरे के करीब। इन्होंने जो बयान दिया है जीजी, इसका मतलब फिर कोई अकेली औरत निकल गई, फिर ऐसा होगा? हाँ जी, और ऊपर से कह रहे हैं कि ये चूंकि फ्रांस में इसने जिंदगी गुजारी है तो इसके ज़हन में वही था भाई ये पाकिस्तान है, इसको फ्रांस ना समझे लो, यानी खुद अपने मुल्क की अपनी गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद ये मान रहे हैं कि हम मैंने जो गई नहीं। हाँ जी। मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफों वाली बात ये सीसीपीओ साहब कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे उनकी। वो अब टीवी पे आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई अल्लाह पाई पे बात करता है। हाँ। देखो ना फ्रांस वाली बात करके तो दंग कर दिया है, हाय। फिर ऊपर से जब आए हैं तो उस वक्त कहते हैं कि ओ शेख उमर फार्मूला, ओ भाई पहले कायदे आजम फार्मूला तो अपनाओ। कहाँ गया तुम्हारा ईमान इत्तेहाद तंजीम? हाँ पहले उसका तो मुजाहरा करो, अपने कमांडर के आगे तुम बोल पड़े हो, कायदे आजम फार्मूला तुम मान नहीं रहे, तुम कहाँ से आ गए हो शेख उमर फार्मूला लेके? ये कौन सा फार्मूले अपने हाँ बनाने शुरू हो जी। गए हो? उबे करो अपने कानून को, अपने असूलों को। हाँ। आप इस तरह की बातें ना करो जिससे दिल आजारी हो। सारे पाकिस्तान की माएं बहनें जो हैं वो कल से इंतहाई दुखी हैं। दुख हाँ, जी, बिल्कुल बहुत दुख यार है। ये क्या हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? मोटरवे के ऊपर ये वाकया हो एक खातून की गाड़ी का पेट्रोल, और कई दफा ऐसा हुआ है, मैं खुद कई दफा ऐसे मेरे से गलती हुई है कि नहीं मैंने पेट्रोल चेक की और चढ़ गए हैं और उसके बाद हाथ पैर पड़ गए हैं को ये तो मुकने वाला है, अब अल्लाह करे पेट्रोल पंप आ जाए। और फिर इन सारी चीजों का बंदोबस्त होता है मोटरवे पे। हाँ जी। जाएं जाके देखें आप, इस्लामाबाद वाला जो मोटरवे है उसके ऊपर अगर आपका पेट्रोल खत्म होता है हाँ। तो वो आके आपको पेट्रोल भी देते हैं और वो साथ पेट्रोल डिलीवर करने के आपसे चार्जेस ले लेते हाँ, हैं। पूरी गाड़ी होती है उनके ऊपर लिखा होता वर्कशॉप। जी जी जी। तो इस तरह की चीजें आप वहां पे फौरी तौर पे करें, चलो हो गया जो हो गया, होना था। मगर अब आप अवाम का, लोगों का दिल ना दुखाएं इस तरह की बातें करके। आप इंतहाई बोंगे आदमी। सबसे बड़ी बात यह है यार कि अगर आपने एक बोंगी मार दी है, इतनी बड़ी गलती की है, दिल दुखाए, उसका एक आसान हल ये था कि आप माजरत ही अगले दिन कर लें। नहीं, आपने अभी तक माजरत नहीं की। माजरत नहीं की। और शहजाद अकबर साहब जो है पहली दफा ये देखा है क्योंकि वो वफाकी मिनिस्टर बंदा जो है लेवल का, हाँ जी। वो सीसीपीओ के साथ खड़ा होकर उसकी वजाहतें पेश कर रहा है। बिल्कुल। ये भी आपको वजाहत देंगे तो मैं भी आपको बताता हूँ यार की कर रहे हो, खुदा दा वास्ता जी जाने दो। मुझे तो कल ऐसे महसूस हो रहा था कि जो फवाद चौधरी ने वो भंग काश्त का नहीं अपना हाँ जी, मंसूबा मंसूबा बनाया, बनाया, हाँ। उसका असर पहले ही होना शुरू हो गया। सारे भंगी लगन लग पे ने। यार एक वाकया हुआ है उसको संभालो, उसमें इज्जत गैरत को भी मद्देनजर रखो, उसमें जो दिल दुखे हैं उन पे मरहम रखने की बजाय आप ज्यादा और उस दिलाजारी लोगों की कर रहे हैं। ये कुछ अर्सा पहले तक मैं सोच रहा था कि पुलिस की यार तारीफ करनी चाहिए, जो पिछले गए हैं सीसीपीओ या जो यहाँ पे ऑपरेशन के हैं डीआईजी। जी। मैं सोच रहा था कि यार उनकी तारीफ की जाए कि उन्होंने मुहर्रमों में बहुत अच्छा बंदोबस्त किया। बड़ा खूबसूरत सारा बंदोबस्त उन्होंने बिल्कुल। किया है। ऐसा है भाई आया नवा सीसीपीओ, आगे सारी पुलिस ही मजाहिया बना दी है। बिल्कुल। ये मजाहिया बातें होनी शुरू हो गई है ना कि भाई तुमने क्यों इस तरह बाहर क्यों निकले थे? आप जीटी रोड की तरफ से क्यों नहीं गए? आपने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? हाँ जी। आप तो फिर कल कलांकों को कत्ल हो जाएगा तो आप कहेंगे भाई जी आपने पेट क्यों नहीं लोहे का लगवाया? हाँ। गोली इसमें तो जानी थी, आपका मांस का पेट है, आपको चाहिए था कि लकड़ का या लोहे का पेट बनवा लेते। आपको नहीं पता आप पाकिस्तान में फिर रहे हैं, यहाँ तो गोली चल जाती है। हाँ। यानी आप ऐसे वाक़े पे फिर बुलेट प्रूफ पेट के मशवरे देने शुरू हो जाए। हाँ। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते किसी बड़े आदमी का कॉल कि मैं इंसान और खुदा के बारे में इतना ही जानता हूँ कि मुझे जब भी खुदा से काम पड़ा
اس نے انسان کا روپ دھار لیا اور جب مجھے کسی انسان سے کام پڑا تو وہ خدا بن بیٹھا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.